सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज नाचीज आपके सामने एक कलाम को पेश करना चाहती है जो बहुत ही खूबसूरत इमाम के इश्क में लिखा गया है। इसका उन्वान है मस्त मौला, इंटॉक्सिकेटेड विथ लव फॉर मौला। अगर तू मस्त मौला है, अगर तू मस्त मौला है तो आजा अश्क बरसाए। शायर कहता है कि वाकई में अगर तू मौला का आशिक है तो आजा, हम आंसू बहाते हैं, अश्क बरसाते हैं। तुझे अगर फिक्रे फरदा है तो आजा अश्क बरसाए। अगर तुझे अपनी रूह की फिक्र है, अपनी आखिरत की फिक्र है तो आजा, हम अश्क बरसाएं। So in Urdu I explain to you in English. It says, if you are intoxicated, if you are intoxicated with love for Mawla, come, let us shed tears. If you are reflecting on the resurrection, come, let us shed tears. अगर दिल उससे गाफिल है, अगर दिल उससे गाफिल है, सदा शैदाए बातिल है, बहुत ही दूर मंजिल है, तो आजा अश्क बरसाएं. If your heart is forgetful of him, always in love with the false, दुनिया की मोहब्बत में है, झूठी मोहब्बत में है. If your heart is forgetful of him, always in love with the false, then the destination is very far. Come, let us shed tears. दिले गमगीन फिदा हो जा, उसी में तू फना हो जा. दिले गमगीन फिदा हो जा, उसी में तू फना हो जा. अगर ये काम मुश्किल हो तो आजा अश्क बरसाए. O sorrowful heart, sacrifice yourself and be merged in him. If this task is too difficult, come, let us shed tears. क़यामत आके रुकती है दिलों में जब कसावत हो. The word कसावत means कीना, bughz, judgment for others, negativity in the heart, all the badamali in the heart. क़यामत आके रुकती है दिलों में जब कसावत है. गुजरना हो क़यामत से तो आजा अश्क बरसाए. Resurrection comes and stops if there is callousness of hearts. If you wish to undergo resurrection, come, let us shed tears. So when we say कि क़यामत से गुजरना है, that means कि जब हम कहते हैं कि मूतु कबला अंत मूतु, we want to die while living, and that happens also in step by step. So if you want to go through that process, दिल कसावत से पाक होना चाहिए. दिल के अंदर कोई बुग्स, कोई कीना, कोई गीबत, कोई भी नापाकी नहीं होनी चाहिए. सदाए गिरियावजारी तबीबे इश्क सुनता है. सदाए गिरियावजारी, the physician of love, listens to the cry of गिरियावजारी. This whole kalam is about गिरियावजारी, that what are the benefits of गिरियावजारी. And it says so beautifully that the physician of love listens to the cry of गिरियावजारी. अगर उसको बुलाना है तो आजा अश्क बरसाए. If we wish to invite him, come, let us shed tears. The way Imam Sultan Muhammad Shah Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, Mawla says in his Farman that you must cry as if a child who has separated from his mother. The way a child cries for the mom, you should cry like that for our didar. That is the power of Ghiriya-Azari. If one wants didar, Ghiriya-Azari is the key. नसीरे इश्क मौलाना अजब फिरदौस आला है.
بلا لے اپنے ہر ساتھی کہ آجا اشک برسائے. O Nasir, love for our Mawla is a wonderful, supreme paradise. Love for our Mawla is wonderful, supreme paradise. Invite each of your companion, saying, come, let us shed tears. So in this kalam, actually what we are saying, that if you are truly the lover, learn how to do Girya Uzari. Shed some tears in Imam's love. If your heart is forgetful, in order to remember him, shed tears. If your heart has kina or bughs, all the napaki, negativity, shed tears to clean the heart. If you are wanting to elevate in your spirituality, go through the Qiyamah, let us shed tears. And when you are wanting to shed tears, it is easier when you are in love. And what does the poet says? Physician of love. Imam is the one who teaches us love. When we stay in remembrance, he is the one who teaches us love. How can we love him? We don't even know how to love him. He teaches our hearts to love him. When we are Farman Bardar doing the zikr, Girya Uzari, then he listens to that cry of Girya Uzari and he bestows his blessings. And the poet says that love for our Mawla is wonderful, supreme paradise. If you want to experience that supreme paradise, it is done when you have gathering of like-minded friends who all want to shed tears, do Girya Uzari for one and one intention only, to have the didar of the beloved. So let us now unite our heart, and let me say a few verses to melt my heart, to seek his madad, to be able to speak with his mercy, his guidance, to help us learn and grow. Bismillahir Rahmanir Rahim. Agar tu mast Mawla hai, agar tu mast Mawla hai, तो आजा अश्क बरसाए. अगर तू मस्त मौला है, तुझे गर फिक्र फरदा है, तुझे गर फिक्र फरदा है, तो आजा अश्क बरसाए. अगर तू मस्त मौला है. दिले गमगीन फिदा हो जा, दिले गमगीन फिदा हो जा, उसी में तू फना हो जा. अगर ये काम मुश्किल हो, अगर ये काम मुश्किल हो, तो आजा अश्क बरसाए. अगर तू मस्त मौला है. क़यामत आके रुकती है, क़यामत आके रुकती है, दिलों में जब कसावत है. गुजरना है क़यामत से, गुजरना हो क़यामत से, तो आजा अश्क बरसाए. अगर तू मस्त मौला है. सदाए गिरिया उजारी, सदाए गिरिया उजारी, तभी बे इश्क सुनता है. अगर उसको बुलाना है, अगर उसको बुलाना है, तो आजा अश्क बरसाए. अगर तू मस्त मौला है. नसीरा इश्क मौलाना,
नसीरा इश्क मौलाना अजब फिरदौस आला है, बुला ले अपने हर साथी, बुला ले अपने हर साथी, के आजा इश्क बरसाए अगर तू मस्त मौला है। या मौला मेहरबान, या मौला मेहरबान, हमें भी तू तेरे इश्क में मस्त कर दे मौला, कि हम तुझे कभी ना भूले मौला, कभी हमारा दिल गाफिल ना हो तेरे इश्क से, तेरे नाम से, तेरे जिक्र से मौला। या मौला हमारे दिलों को तू पाक रखना मौला, हमारी मदद करना मौला, कि हम शैतान के फरेब में ना आए, इस दुनिया के जाल में ना आए मौला, और दिलों में कभी कोई भी गंदगी ना लाए मौला। या मौला मेहरबान, ऐसी तू तौफीक, ताईद, हिम्मत और यारी देना मौला। या मौला इतनी गुर्बत है मौला, देख दिल कितना सख्त हुआ है कि आंख से एक आंसू भी नहीं टपकता है मौला। या मौला इस दिल को नरम कर मौला। या मौला तेरा इश्क दे, तेरी मोहब्बत दे मौला, कि आंखों से जार और कतार तेरे इश्क के आंसू बहे मौला, उन आंसुओं को हम बुलाते हैं मौला। या मौला मेहरबान, कि इन्हीं आंसुओं से दिल पाक होगा मौला। या मौला मेहरबान, तो हमें गिरिया उजारी की दौलत इनायत फरमा मौला, और ये दौलत उन्हीं को हासिल होती है मौला जो आजिज़ी में रहते हैं, तेरे इश्क में रहते हैं, तेरे जिक्र में रहते हैं मौला। या मौला मेहरबान, ऐसी तू तौफीक, ताईद, हिम्मत तमाम को अता फरमा मौला। या मौला मेहरबान, नहीं है गिरिया जारी, नहीं है गिरिया जारी, यही है मेरी बीमारी, अली अल्लाह मदद फरमा, अली अल्लाह मदद फरमा। या मौला मेहरबान, मुश्किल कुशा, तू रहम फरमा, रहम फरमा, फरियाद रस, फरियाद रस, मुश्किल कुशा मदद फरमा। शुक्र लिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र लिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र लिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह। आज हम तमाम यहाँ साथ हुए हैं। पिछले हफ्ते हमने फरमान पे बातचीत करना शुरू की थी, जिसके हवाले से एक सवाल आया था। उस सवाल को पहले टैकल करते हैं। सवाल में ये पूछा गया था, जब हमने बात की थी, ये फरमान इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह का फरमान, फरमान नंबर 160, दार एस सलाम, सितंबर 29, 1899 का फरमान जो हम डिस्कस कर रहे थे। उस पर से एक सवाल आया था जब हमने बात की थी कि अक्ल जो है वो इल्म से होशियार होती है, यानी कि जिसके पास अगर इल्म नहीं है तो अक्ल भी अच्छी नहीं होगी। और इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह हाजिर इमाम बार बार इंटेलेक्ट की बात करते हैं। तो सवाल ये था कि क्यों इल्म, इल्म से क्या ताल्लुक है अक्ल का। तो पहले दुनिया की मिसाल लेते हैं कि अगर दुनिया में कोई शख्स बहुत ज्यादा उसने दुनियावी तरक्की की है, बिजनेस में या एजुकेशन में दुनिया में प्रोफेसर बन गए हैं, या कोई बिजनेस में बहुत आगे चले गए हैं, दुनिया में बहुत नाम कमाया है, दौलत कमाई है, ये तमाम चीजें जो हाई स्टेटस दुनिया में कोई भी अगर पाता है, वो बगैर इल्म के नहीं पा सकता है। विदाउट नॉलेज anyone cannot develop themselves in the worldly life. जब ये कानून है कि दुनिया की जिंदगी में, दुनिया की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए इल्म चाहिए, क्योंकि दुनियावी इल्म सिखाता है कि किस तरह चलना है, क्या करना है ताकि दुनिया में तरक्की हो। तो क्या ये कानून, क्या ये उसूल हम मजहब पे लागू नहीं कर सकते हैं? इसके लिए हमारे जहन में सवाल पैदा होता है। तो रिमेम्बर, जब ऐसे सवाल पैदा होते हैं तो हमें हमेशा दुनिया में देखना चाहिए कि ये दुनिया में कैसे हो रहा है।
اگر علم والے زیادہ دنیا میں ترقی کر پاتے ہیں انہی کی زیادہ پروگریس ہوتی ہے. اب یہاں پہ کوئی یہ بھی سوال کر سکتا ہے کہ دنیا میں ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے ڈگریز حاصل نہیں کی ہے لیکن انہوں نے دنیا میں بہت ترقی کی ہے. ڈگری جو ہے وہ ایک قسم کا سرٹیفکیٹ ہے، اگر آپ اسکول کے پروسیس سے کالج یونیورسٹی گئے آپ کو ملی. لیکن جو شخص فزیکل اسکول میں نہیں جاتا ہے لیکن دنیا کی نالج کو دنیا میں حاصل کرتا ہے تب جا کے وہ دنیا کی ترقی میں آگے بڑھتا ہے. کسی نہ کسی طریقے سے علم تو اس کو لینا ہی پڑتا ہے. شروعات کی جو محنت ہے جو علم حاصل کرنا ہے وہ کرنا ہی پڑتا ہے، اسٹریٹجیز کو سیکھنا پڑتا ہے، اس کو اپلائی کرنے کے بعد ہی دنیا میں ترقی ہوتی ہے. وہی قانون دین کا بھی ہے اور اس کے لیے فرمان ایک جو ہے امام سلطان محمد شاہ کا فرمان بامبے اپریل 4 1908 کا فرمان ہے. مولا فرماتے ہیں اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. مرشد جو فرمان فرمائے اس کو بغیر کسی بہانے کے تمہیں مان لینا چاہیے. اس طرح کا فرمان کیوں ہوا یہ تمہیں بولنے کی ضرورت نہیں. ہم رات کہیں تو رات، دن کہیں تو دن، لیکن تمہیں امام کی عقل کے مطابق چلنا چاہیے. انسان کے عقل کی جڑ بھی امام ہی کی عقل ہے. امام کے فرمان میں تمہیں اپنی عقل دوڑانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ فرمان اس لیے چوز کیا گیا کہ یہاں پہ ہمیں یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ ہماری جو عقل ہے وہ امام ہی کی عقل کا ایک شیڈو ہے، پرچھائی ہے. امام جب ہمیں فرامین فرماتے ہیں تو ہمیں اپنی عقل سے جو علم سے شارپن ہوتی ہے اس کو استعمال کر کے امام کے فرامین کو سمجھنا چاہیے. فرمان ماننے میں آناکانی نہیں کرنی چاہیے، نہ ماننے کی بات نہیں کرنی چاہیے. اور اس کی ایک بہت اچھی مثال جو ہے ہم عزازیل کی لے سکتے ہیں کہ عزازیل جو ہے اس نے بہت علم لیا تھا، بہت کتابیں پڑھی تھی. جیسے پیر نے ہمیں بتایا کہ 36 کروڑ کتابیں پڑھیا پر بھیتر بھید نہ پایا. کتابیں بہت پڑھی تھی. جب اس کو کہا گیا کہ سجدہ کر تو اس نے کہا میں کیوں کروں کیونکہ میں تو آگ سے بنا ہوں. اس نے غرور کیا اور آدم کے سامنے اس نے سجدہ نہیں کیا. اس کے علم نے اس کو مغرور بنا دیا. علم جب ایک انسان حاصل کرتا ہے امام کی فرمان برداری کے اندر رہتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ امام عقل کل ہے. اس کی عقل جو ہے وہ ناقص انکمپلیٹ عقل ہے اور وہ امام کے فرامین سے علم سے سمجھنے کی کوشش کرتا ہے. دوسرا جو فرمان جو ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے وہ یہ ہے، یہ فرمان زانزبار 13 جولائی 1899 کا ہے. اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. مولا فرماتے ہیں ہمارے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں اپنا ذہن استعمال کرنا چاہیے. اس طرح تم پر دین فوراً روشن ہو جائے گا. اپنا جو دین ہے اس کے متعلق عقل سے غور کرو گے تو زیادہ روشنی ہوگی. ہمارا دین عقل پر رچا ہوا ہے. عقل کے بغیر دین کو جانچو گے. اس لفظ پہ غور کرنا پڑے گا، جانچو گے. جانچنا مطلب پہچاننا، پرکھنا. جوہری کو بھی اگر ٹریننگ نہ دی جائے تو پتھر اور جیولری میں فرق نہیں کر پائے گا. جانچنے کی ایبلٹی جو ہے وہ علم سے آتی ہے. تو مولا فرماتے ہیں کہ عقل کے بغیر دین کو جانچو گے تو زیادہ سمجھ نہیں پڑے گی. علم کی ایبلٹی کے بغیر جب ہم عقل کو نہیں کھولتے ہیں اور فرامین کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو زیادہ سمجھ میں نہیں آتا ہے. اور مولا فرماتے ہیں اور کچھ حاصل نہیں ہوگا. لیکن اگر عقل سے غور کرو گے تو زیادہ سمجھ حاصل ہوگی. تو یہاں پہ بھی جو امام فرما رہے ہیں وہ عقل کی اہمیت کے لیے فرما رہے ہیں اور الفاظ جو ہے مولا نے جانچنے کا استعمال کیا ہے. جانچنا مطلب پرکھنا، ریکگنائز کرنا، پہچاننا. وہ چیز جو ہے علم کے بغیر کوئی بھی چیز ہم پہچان نہیں سکتے ہیں. تو یہاں پہ بھی جو بات ہو رہی ہے کہ امام جو فرماتے ہیں علم کے بغیر عقل کو سمجھنا ناممکن ہے. ایک اور فرمان جس میں امام جو ہے بہت ڈائریکٹلی فرماتے ہیں، جی یہ فرمان ہے بامبے 30 مارچ 30 1908. مولا فرماتے ہیں
तुम्हारा दीन आहिस्ता आहिस्ता सूरज की तरह रोशन होगा। तुम में से समझदार और अकल वाले जो इल्म रखते होंगे वो ये देखकर खुश होंगे। यानी कि जिनके पास इल्म है वही समझदार है, जिनके पास इल्म है वही अकल वाले हैं। वो दीन के जो सूरज की तरह चमक रहा है, दीन रोशन हो रहा है, उसकी चमक को वो देख सकेंगे, पहचान सकेंगे। तो कहने का मकसद ये है कि जब हम फरमान पे गौर करते हैं तो एग्जैक्टली द वे वी आर थिंकिंग उसमें नहीं होता है फरमान के अल्फाज में, लेकिन जब हम गौर से उसको ध्यान देते हैं इस पे तो समझ आता है कि इमाम ने जो अक्ल की बात की है वो अक्ल जो है वो इल्म ही से हासिल होती है। एक और मिसाल लेते हैं, जैसे मंसूर के लिए इमाम ने फरमाया कि मंसूर के लिए बेहिश्त मौजूद थी, लेकिन वो कहता था कि जब तक मैं मक्स को नहीं पाऊंगा तब तक मैं आगे बढ़ूंगा। मंसूर ने ऐसी बात क्यों की? अगर एक आम इंसान हो, एक आम जमाती मेंबर हो, उसके लिए ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? मर जाएंगे तो जन्नत में जाएंगे, इमाम के पास जाएंगे, काफी है। लेकिन जब इमाम ने फरमाया कि मंसूर ने के लिए जन्नत मौजूद थी, लेकिन वो कहता था कि जन्नत को लेके मैं क्या करूंगा, यानी कि उसके पास ये इल्म था, ये समझ था कि जन्नत के आगे भी कोई मकाम है जिस पर मुझे पहुंचना है। तो ये तमाम मिसालें देने का मकसद ये है कि ये इतना बुनियादी कॉन्सेप्ट है कि अक्ल जो है इल्म के बगैर शार्पन नहीं हो सकती है। हम तोतों की तरह किताबें पढ़ सकते हैं, जिक्र कर सकते हैं, लेकिन जब तक हम इल्म हासिल नहीं करते हैं तब तक हम इन बातों को जो है समझ नहीं सकते हैं। हाजरी इमाम का एक फरमान मौला फरमाते हैं, कराची पाकिस्तान मार्च 21 1989, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। Men's intellect has a fundamental role to play in the proper and full comprehension of the faith. Men's intellect. आदमी के पास अकल होगी तो वो अपने ईमान को, अपने मजहब को समझेगा। जब तक इल्म ही नहीं है तो वो कैसे समझेगा? तो इल्म, कोई मुझे पूछ सकता है कि इल्म कैसे? तो सबसे पहले जब हम इल्म की बात करते हैं तो दुनियावी इल्म, लैंग्वेज आना चाहिए। इमाम ने फरमाया आप इंग्लिश सीखें, यहाँ तक कि इमाम ने कई फरमान में उर्दू भी सीखने का कहा है। तो जब हम लैंग्वेज सीखते हैं, दुनिया के इल्म को हासिल करते हैं, दुनिया के लिए अपनी अकल को इस्तेमाल करते हैं, फिर उसी अकल को जब हम जिक्र के जरिए अपने रूहानी इल्म को सीखने, अपने दाइयों फिदाइयों की किताबों को जब पढ़ते हैं और अकल को इस्तेमाल करते हैं, तो दीन के अंदर जो राज छुपे हुए हैं वो समझ में आने लगते हैं। दीन के अंदर अजीब व गरीब राज जो माजिजात की तरह छुपे हुए हैं वो समझ में आने लगते हैं। हम आगे बात करते हैं और इस बात को हम कंटिन्यू करेंगे कि कैसे माजिजात समझ में आते हैं। इस फरमान को जब हम पढ़ रहे थे, यहीं से शुरू करेंगे जहां से हमने रोका था। मौला फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। कैद खाने में इबादत करें और समझें कि मर जाएंगे तब कैद खाने से आजाद होकर बिहिश्त में जाएंगे, मगर बिहिश्त भी कैद खाना ही है। यहीं पर इमाम ने फरमा दिया कि कैद खाने में इबादत करेंगे। क्या मतलब है इसका? What does it mean? We do sit for bandagi in the morning. Do we sit in a cage or a prison? What is Imam telling us? इमाम हमें ये बता रहे हैं कि हमारा जिस्म, अगर हम जिस्म को जमात खाने ले जाते हैं और जिस्म के लिए इबादत करते हैं, और दुआ भी हमारी क्या है? मौला मेरे धंधे में बेहतरी कर देना, मौला मुझे सेहत का ये मसला है, मौला तो ठीक कर देना, मौला मेरे बच्चे का एग्जाम है, मौला तो उसको तौफीक देना कि वो पास हो जाए। कैद खाने में इबादत करेंगे और समझेंगे कि मर जाएंगे तब कैद खाने से आजाद होकर बहिश्त में जाएंगे। जिस्म की इबादत करेंगे, जिस्म का फायदा होगा। जब तक हम इल्म से ये नहीं समझेंगे कि भाई हमारी खुद की जिंदगी भी 3 मकाम पर है, हमारे पास जिस्म भी है, हमारे पास रूह भी है और अकल भी है। जिस्म को तो खुराक खिलाई है, क्या हमने रूह को खुराक खिलाई है? फिर अकल को खुराक खिलाई है? अगर रूह की खुराक जिक्र और इबादत है तो पता चला जिक्र के माना इल्म के भी है, और इल्म जो है वो अकल की खुराक है।
किसी के पास अगर अकल को स्ट्रांग नहीं बनाया, अकल को परवान नहीं चढ़ाया, तो जो फायदा सबसे ऊपर का होना चाहिए वो नहीं हुआ। सबसे नीचे जिस्म, इसके ऊपर रूह, उसके ऊपर अकल। जो जिस लेवल की इबादत करेगा उसको उस लेवल का फायदा होगा। तो जिस्म की इबादत कैद खाने की इबादत, रूह की इबादत अभी भी दूसरा मकाम है, इसके ऊपर का भी मकाम है। इमाम फरमाते हैं अक्ल से इल्म को समझना है। तो कैद खाने में इबादत करना और समझना कि मर जाएंगे तो कैद खाने से आजाद हो जाएंगे, बेहिश्त भी जो है वो कैद खाना है। तो कोई ये सवाल कर सकता है कि क्या अगर हम दुनिया में रहते हैं, दुनिया की तकालीफ होती है, तो इमाम से दुआ ना करें? बिल्कुल बेशक करें, सबसे आखिर में करें। सबसे पहले जो दुआ होनी चाहिए वो अक्लानी तरक्की की होनी चाहिए। अकल जो है वो नूर की पहचान करने में मदद करता है। सबसे पहले अकल की तरक्की, रूह की तरक्की, फिर मौला टाइम हो ना तो जिस्म को भी मदद कर देना। क्यों? जिस्म तो फानी है, जिस्म तो खत्म हो जाने वाला है। जो रहने वाली चीज है उस पर मेहनत करनी है, जो हमारे साथ आखिरत में आएगी उस पर हमें मेहनत करनी है। तो कितनी अजीब बात है कि हम सिर्फ जिस्म के हवाले से ही दुनिया को देखें, जिस्म के हवाले से ही हम इबादत करें और जिस्म के लिए ही दुआएं मांगें। अकल के लिए, रूह के लिए हमें ना समझ है, ना इसकी दुआएं मांगते हैं। जब कोई शख्स इबादत करता है और उसके पास इल्म नहीं होता है और वो माजिज़ात को देखता या सुनता भी है, तो वो माजिज़ात को पहचान नहीं सकता है। क्या मिसाल है इसकी? इसकी मिसाल कुरान में दी गई है। कुरान में फरमाया है खुदा ताला ने कि खुदा जो है वो शर्माता नहीं है मच्छर की मिसाल देने से। खुदा ताला को मच्छर की बात करने की क्या जरूरत थी? कुरान के अंदर सूरह बकरा में मच्छर की बात की है कि खुदा ताला को शर्म नहीं आती है कि मच्छर की मिसाल दे। आपको मालूम है जब एक मोमिन सालिक सच्चे दिल से इबादत करता है तो सबसे पहले जो माजिजा, जो राज उस पर खुलता है वो कान का माजिजा होता है। कान से आवाज सुनाई देती है और बहुत आम तौर पर मच्छर की भिनभिनाहट, मच्छर की भिनभिनाहट की आवाज आती है। किस तरह से हम इस बात को जानते हैं? हम इस तरह से जानते हैं कि जिस तरह से दुआए नूर में फरमाया गया कि या खुदाया तू मेरे दिल में एक नूर मुकर्रर, और दिल के बाद क्या कहा गया? या अल्लाह तू मेरे कान में एक नूर मुकर्रर कर। जो मोमिन सालिक इल्म गिनान में आगे बढ़ता है, अपने दिल के अंदर पाकीज़गी लाता है, आमाल की सफाई करता है, गिरियाजारी करता है, जब वो मोमिन इबादत के लिए बैठता है उसके बातिनी कान खुलने लगते हैं। क्यों? कि दिल को नूर से मुनव्वर किया। तो दूसरा जो स्टेप है वो कान के खुलने का माजिजा है। अगर किसी के पास इल्म ही नहीं है तो वो कान में कोई आवाज भी सुनता है तो वो कहेगा पता नहीं कहाँ जमात खाने में मच्छर मक्खी आ गई है। वो पहचान भी नहीं पाएगा कि ये फरिश्ता था जो आया था उसके पास और उसके कान में भिनभिनाहट, नूर की आवाज को वो सुना रहा था। पहचान ही नहीं पाएंगे, क्योंकि मच्छर की जो बात की गई है वो तो कुरान में की गई है। तो कहने का मकसद ये है कि हर स्टेज के ऊपर जब तरक्की होती है उस तरक्की की पहचान भी तो इल्म से मिलती है। जब इल्म से तरक्की की पहचान मिलती है और जब हम तरक्की पाते हैं तो वो मोमिन सालिक और हम्बल होते जाता है, आजिज होते जाता है। अजाजिल की तरह नहीं। अजाजिल ने जब तरक्की हासिल की, इल्म हासिल किया, तो उसने क्या किया? अपने अंदर गुरूर को जगा दी। जो मोमिन सालिक है, जो इल्म और अमल दोनों पे यकीन करता है, दोनों पे काम करता है, वो इल्म भी हासिल करता है और हमेशा अपने आप को आजिज, गिरियाजारी से रखता है, जिक्र से रखता है। तो क्या होता है कि बैलेंस हो जाता है। जितना ज्यादा वो इल्म लेता है उतनी उसके अंदर आजिजी आती है। जितना ज्यादा वो इमाम के माजिजात को, इमाम के राजों को वो जानता है इल्म के जरिए से और एक्सपीरियंस करता है रूह के मकाम पर, वो खुश होता है, खामोश जबान में रहता है, अपने राजों को फाश नहीं करता है, क्योंकि ये राज बताने के नहीं होते हैं। जो रूहानी एक्सपीरियंसेस होते हैं वो बताने के नहीं होते हैं। लेकिन जो इल्म से आगे चलते हैं वो इल्म से हर बात को समझते हैं, इल्म से इसकी समझ को पाते हैं कि किस तरह से जो है वो माजिजात को पहचानना है। अगर हमारे पास इल्म ही ना हो तो हम माजिजात को कैसे पहचानेंगे?
यही बात इमाम हमें मिसाल के जरिए से एलोगोरी में समझा रहे हैं। क्या कहा मौला ने? कैद खाने में इबादत करें और समझें कि मर जाएंगे तब कैद खाने से आजाद होकर बिहिश्त में जाएंगे, मगर बिहिश्त भी कैद खाना ही है। ये समझ कौन देगा? कैसे आएगी समझ? कोई शख्स अगर सुबह शाम जमात खाने जाता है तो दिल के अंदर बहुत खुश होता है कि भाई मैं सुबह शाम जमात खाने जाता हूँ, आई एम अ वेरी गुड मोमिन। लेकिन वो किस मकाम का मोमिन है? जिस्म का मोमिन है। तो इस बात को समझना कि भाई हमें जिस्म का मोमिन नहीं बनना है, क्योंकि जिस्म की जो इबादत है वो नीचे जाने की इबादत है। फिरौन भी इबादत करता था। फिरौन जो अपने आप को खुदा कहलवाता था वो भी इबादत करता था। तो इबादत अगर जिस्म की है तो फिर सवाल ये होगा कि हमें क्या चाहिए इस इबादत से? दुनिया की बेहतरी, दुनिया की तरक्की, क्या चाहिए क्या? फिर मौला फरमाते हैं, तुम में से जो तुमसे ज्यादा अक्लमंद थे वो हमारे रास्ते पर चले। हमारा रास्ता, इमाम का रास्ता कौन सा रास्ता है? इमाम का रास्ता सिरातुल मुस्तकीम। इमाम जो मोमिनों के सरदार हैं, इमाम ने इल्म पे कितनी अहमियत दी है। मौला अली से शुरू करें हाजी इमाम के फरामीन तक, एजुकेशन की इम्पोर्टेंस, इल्म की इम्पोर्टेंस, रूहानी तरक्की की इम्पोर्टेंस, ये तमाम चीजें हर इमाम ने हमें बताई हैं। इमाम का रास्ता जो है वो इल्म और अमल का रास्ता है, नूर से करीब होने का रास्ता है, अपने आप को फना करने का, और जिंदगी के अंदर ही अपने आप को इमाम के साथ एक कर लेना। क्या फरमाया मौला अली ने? ही फरमाया कि जिसने अपने आप को पहचाना उसने गोया खुदा को पहचाना। एक और जगह मौला फरमाते हैं कि मैं उस खुदा की इबादत ना करूं जिसको मैं देखूं नहीं। खुदा को देखना कि इंसान के लिए मुमकिन है? बिल्कुल मुमकिन है, बेशक मुमकिन है, क्योंकि खुदा की पहचान इल्म से होती है। खुदा अगर हमारे सामने भी हो, हम कैसे पहचानेंगे? कितनी अजीब बात है। आज के जिक्र में एक चीज जो मैंने नोट की, कुछ साथी थे, उन्होंने कहा अल हय्युल कय्यूम, कुछ साथी ने कहा अल हय्युल कय्यूम अली अल्लाह। तो ये कैसे हो गया कि ये दो जिक्र है, खुदा के नाम है, खुदा का इस्म आजम है जो कुरान में है कि अल हय्युल कय्यूम, लेकिन किसी के लिए ये अल हय्युल कय्यूम अली अल्लाह है। यानी कि अली को अल्लाह मानते हुए ये कहते हैं कि ये अल हय्युल कय्यूम भी है। कुर्बान उनके इल्म पर, उनकी समझ पर, कि उनको परवाह नहीं है लिखा हुआ स्लाइड पे अल हय्युल कय्यूम है, लेकिन वो कहते हैं अल हय्युल कय्यूम अली अल्लाह, क्योंकि ये उनका ईमान है, उनका पक्का ये ईमान है कि अल हय्युल कय्यूम अगर कोई है तो वो अली अल्लाह है। ये पहचान कैसे आई? इल्म से आई। जब तक हम इल्म से नहीं पहचानते हैं तो जो आला हमारे लिए माजिजात हैं, जो रूहानी फ्रूट हमारे लिए हैं, हम कैसे पहचानेंगे? रूहानी फ्रूट की मिसाल से बात याद आई मरियम की। बीबी मरियम जो हैकल में रहती थी, और जिक्रिया जो कि उस जमाने के पैगंबर थे, पैगंबर मरियम के टीचर हैं, मरियम बच्ची है, उसके रूम में जाते हैं तो देखते हैं कि वहां पे फ्रूट पड़े हैं। कौन से फ्रूट? जो मौसम में नहीं है, बिन मौसम के फ्रूट है। और जिक्रिया कहते हैं कि मरियम ये फ्रूट कहाँ से आए तेरे पास? वो कहती कि मुझे मेरे खुदा की तरफ से ये तोहफा हासिल हुआ है, ये इनाम हासिल हुआ है। पैगंबर हैरान है अपनी शागिर्द को देख के कि उसको ऐसा माजिजा कैसे कैसे ये फ्रूट उसको मिल रहा है। फ्रूट जो है वो मिसाल है, जो इसका हासिल, जो ममसूल है, इसका जो मग्ज है, उसके पास ऐसा रूहानी तावीली इल्म था कि वो उस्ताद भी हैरत करता था कि कैसे इसके पास ऐसा इल्म है, कहाँ से ये इल्म आया। ये इल्म जो है वो हमारे खुदा का हम पर इनाम है, उन मोमिनीन के लिए जो हकीकत की तलाश में अपनी अकल को खोलते हैं और इल्म में आगे से आगे तरक्की करते हैं। तुम में से जो ज्यादा अक्लमंद थे वो हमारे रास्ते पर चले। मसलन मंसूर चला, मंसूर के लिए बहिश्त मौजूद थी, मगर वो कहता था कि सिर्फ बहिश्त में जाकर क्या करूं, जब तक मक्स को नहीं चखूंगा तब तक वापस नहीं लौटूंगा, आगे बढ़ूंगा, आगे बढ़ूंगा। आगे बढ़ना मोमिन के लिए ये लाजिम है कि वो हमेशा ये कहे कि वो जो है इल्म की पहली सीढ़ी पर है,
वो इल्म की पहली सीढ़ी पर है। जब एक मोमिन पहली सीढ़ी पे है तो उसको तो चढ़ना ही चढ़ना है। लेकिन इमेजिन करें कि अगर मंसूर को खुदा कहता है कि जन्नत तुझे दी, वो कहता है नहीं, जन्नत के भी आगे जाना है। कैसा वो इल्म में आगे होगा कि उसको मालूम था कि बेहिश्त भी एक स्टेज है, उसके आगे भी बढ़ के जाना है। और इमाम फरमान में फरमाते हैं कि बेहिश्त जो है वो घोड़ों का स्तबल है, घोड़ों को आराम से रखा जाता है, बूढ़े घोड़ों को। लेकिन जो हकीकी मोमिन है उसको कहीं रुकना नहीं है, उसको आजादी तक पहुंचना है, ईमान के साथ एक होना है, आराम नहीं करना है। जिसको आराम नहीं करना है, मीनिंग कंफर्टेबल नहीं रहना है, मेहनत करनी है। जब भी हम कोई नई चीज सीखने के लिए कोशिश करते हैं, मेहनत लगती है, मुश्किल लगता है, तकलीफ होती है, लेकिन ये मोमिन की निशानी है। मोमिन मेहनत लेता है, मोमिन तकलीफ के लिए उफ नहीं करता है। क्यों? उसका साथी, उसका मददगार, उसका मौला है। क्योंकि मोमिन को इल्म से ये बात समझ में आ गई है, तो उसको मालूम है कि उसको अपने आप पे भरोसा नहीं, उसकी मौला पे भरोसा है। उसको मेहनत करनी है, देने वाला तो मौला है। तो मौला यहाँ पे मंसूर की मिसाल दे के हमें समझाते हैं कि बेहिश्त भी जो है एक स्टेज है जहां पे रुकना नहीं है। तो आज तक जो लोग बेहिश्त को एक मकाम समझते थे, वो मकाम भी एक मंजिल है जिससे आगे रास्ता और बढ़ता है। तो अगर हम बाइबल की स्टडीज को करें या हम कुरान की स्टडी को करें तो पता चलता है कि जन्नत और दोज़ख की बात की गई है। और हम देखते हैं कि कितने इस्लाम में कितने सारे फिरके हैं। सुन्नी फिरका जो है, हम सुनते हैं कि भाई जन्नत के लिए वो क्या क्या नहीं करते हैं, जन्नत की लालच में जो है वो अपने आप को शहीद कर देते हैं, अपने आप को कुर्बान कर देते हैं, क्योंकि जन्नत मिलेगी, हूरें मिलेंगी जन्नत में। एक इस्माइली इल्म से जानता है, जिसने कुरान को भी पढ़ा नहीं है, समझा नहीं है, वो जानता है कि बेहिश्त भी जो है वो एक स्टेज है। बेहिश्त के आगे की मंजिल की जो समझ है, इमाम ने हमें फरामीन में दे दी है। अब इस मंजिल की पहचान जो है वो हमें करनी है, इल्म से गोता लगाना है और ढूंढना है कि वो आगे की मंजिल कहाँ है, कि इस बारे में कहाँ कहाँ बात हो रही है। कुरान में, गिनान में, फरमान में, हमारे दाइयों फिदाइयों की किताब में वो मंजिलें क्या है, उनके नाम क्या है, इस्माइली जानना चाहता है। फिर मौला फरमाते हैं कि जब असल का इल्म ना हो तो क्या हासिल। यहाँ पे हर सवाल जो इल्म से किया गया था उसका जवाब मिल गया। मौला फरमाते हैं कि जब तक असल का इल्म, यानी कि इल्म तो लेना है, जब तक इल्म नहीं लेंगे समझ नहीं आएगी कि असल भी कोई चीज है, असल भी एक मकाम है, असल भी एक चीज है। तो असल को जो पाना है तो वो इल्म से उसकी निशानदेही होगी, हमें समझ आएगी कि असल है क्या। फिर फरमाते हैं जब तक असल का ना इल्म हो तो क्या हासिल। मौला मुर्तजा अली ने फरमाया कि जिसने खुद को पहचाना उसने गोया खुदा को पहचाना। तो खुद को कैसे पहचानना है भाई, हम अपने आप को जानते हैं, हम कैसे पहचाने। तो पता चला इल्म की स्टडीज करके कि भाई सबसे पहले तो हमारा जो मैं है उसमें तो बहुत ज्यादा गफलत भरी है, कीना, बुग्स, हसद, गुरूर, झूठ बोलना, ये तमाम बीमारियां जो है वो हमारे ऊपर लगी हुई हैं। और उसको हमने क्या नाम दिया? नफ्स अमारा। क्योंकि ये नफ्स जो है वो हमारी ही जात का हिस्सा है, हमारे रूह का हिस्सा है, कार्नल सोल। ये पहला लेवल है जो हमारी सोल का, जिसे हम कहते हैं नफ्स अमारा। पूरा बुराइयों से भरा पड़ा है। क्यों बुराइयों से? क्योंकि उसको ये चाहिए, वो चाहिए। ये किसी के पास क्यों है तो हसद हुआ, उसके पास ना हो तो झूठ बोला, किसी को हासिल हो गया तो तकलीफ हो गई। यानी कि हमारी रूह का एक हिस्सा जो शुरुआत का हिस्सा है, जो नफ्स की गुलामी की वजह से पूरा दागदार और काला हुआ है। जब हम सुनते हैं कि हमारी रूह जो है वो सफेद, व्हाइट थी पूरी, लेकिन अभी तो पूरी ब्लैक हो गई है, वो कैसे हो गया? कुरान में ये कहा गया है कि उस रोज कुछ लोग सफेद मुंह वाले होंगे, कुछ लोग काले मुंह वाले होंगे। सुल्तान अहमद शाह के फरमान में मौला ने फरमाया है कि सफेद मुंह वाले होंगे, काले मुंह वाले होंगे। अगेन ये मिसाल है किसकी? हमारी अपनी रूह की। जो हमारी नफ्स है, हमारा जो हमारी रूह का जो पहला हिस्सा है,
नफ्स की गुलामी की वजह से पूरा काला हुआ है। जब हमने इल्म को हासिल किया तो पता चला कि झूठ बोलना नहीं चाहिए, हसद नहीं करना है, गुरूर नहीं करना है, किसी की कीमत नहीं करनी है, किसी को जज सोच में भी नहीं करना है। लेकिन पता चला कि ये बीमारी तो हमारे अंदर है, तो ये अंदर कोई और तो नहीं, हम ही है ना। ये हुई ना खुद की पहचान, पहले मकाम की पहचान, खुद की पहचान पहले मकाम की, जो अच्छी पहचान नहीं है लेकिन फायदेमंद है, क्योंकि इसको हटाना है और उस नफ्स से अम्मारा को ट्रांसफॉर्म करना है नफ्स से लवामा में। लेकिन जब तक ये इल्म से हम पहचानेंगे नहीं कि ये बुराइयां हम में है, कोई भी शख्स अपने आप को बुरा नहीं बोलेगा। हमेशा हर शख्स अपनी तारीफ चाहता है। एक मोमिन सालिक होगा ना, वो अपनी बुराई करेगा, वो आजिजी से हमेशा ये कहेगा कि खामियां तो मेरी है, खूबियां तो सिर्फ मेरे मौला की है। कितनी अजीब बात है ये। तो वो मोमिन जो है वो हमेशा अपनी खामियों पे नजर रखता है, अपनी बुराइयों पे नजर रखता है। क्यों? वो जानता है कि मेरा नूर, मेरा मौला जो है वो नूर से नूरानी, पाकों का पाक है। मुझे जब उसके नूर से मिलना है तो ये जो मेरी रूह पे दाग लगे हैं उसको मुझे हटाने हैं। तो क्या समझ आई इनसे कि जो ये मेरे अंदर बीमारियां हैं, मेरी रूह पे चिमटी हुई है, इसको निकालना है। जब इसको निकाला, इसको हटाया, तो दूसरे हिस्से पे पहुंचे क्या? ट्रांसफॉर्मेशन पे, कि हमने अपने आप को जिक्र में पाबंद रखा, इल्म में आगे बढ़ाया, जो इल्म नहीं भी आता था मेहनत की, इल्म हासिल किया, मुश्किल था तो भी हासिल किया, कोशिश की। तो क्या हुआ? हमारे अंदर तब्दीली आई, इनकलाब आया, चेंज आई। चेंज जो है कियामत का नाम है। कियामत आई, कियामत भी कतरा कतरा, स्टेप बाय स्टेप आती है। इल्म वाली रूह दर्जा ब दर्जा चढ़ती है। तो कियामत की समझ जो हमें चाहिए वो दर्जा ब दर्जा हमें हासिल होना शुरू होती है। जब असल का इल्म ना हो तो क्या हासिल? इल्म चाहिए। मौला मुर्तजा ने फरमाया क्या कि जिसने खुद को पहचाना उसने गोया खुदा को पहचाना। जहां देखते हैं वहां रूह दोस्त को देखते हैं। ये हो गया दूसरा मकाम। जब एक मोमिन सालिक ने अपनी नफ्स से अमारा को पहचान लिया और अपनी नफ्स की बीमारियों से अपने आप को आजाद करना शुरू किया, तो पाकीज़गी, सफाई, सफेदी शुरू हो गई। और फिर जब इल्म महफिल में एक दूसरे को देखा तो पता चला ये तो रूह के दोस्त हैं। ये तो बहुत डिफरेंट लोग हैं जिनको हम जमात खाने में मिलते हैं या फैमिली में मिलते हैं। ये तो डिफरेंट ही किस्म के लोग हैं। ये लोग जो है वो रूह के आशिक हैं, इल्म से अपनी रूह की आशिकी को सीख रहे हैं। जब ये समझ आती है तो नजर क्या आता है? जिस्म नहीं, बुराइयां नहीं, उसके रूह के अंदर जो इमाम का इश्क है वो नजर आता है। वरना खामियां किसमें नहीं है? हम सब में बहुत सारी खामियां हैं, बहुत सारे फ्लॉज हैं। लेकिन इल्म महफिल में आके अचानक से हमारे अंदर तब्दीली होती है। हम बुराइयों को नहीं देखते हैं, खामियों को नहीं देखते हैं, अच्छाइयों को ही देखते हैं। क्यों? इल्म से हमारी आंखें खुल गई हैं। जहां देखते हैं वहां रूह दोस्त को देखते हैं। तो ये माजिजा बताऊं कि जितने साथी जो इल्म क्लासेस में बाकायदगी से आते हैं उनको मजा आता है और अच्छा लगता है कि इन्हीं लोगों की महफिलों में बैठे। हमें शायद एहसास नहीं होता है लेकिन हमें हमारे दिल के अंदर ये समझ आ गई है कि ये लोग जो है ना वो इल्म के आशिक हैं, इमाम के आशिक हैं, रूह के दोस्त हैं। दिल चाहता है ऐसी क्लासेस बार बार हो, ऐसी महफिलें बार बार हो, हम इन्हीं के साथ बैठे, इन्हीं के साथ हम इमाम की तारीफ करते रहें। इसकी क्या वजह है? यह हमारे अंदर एबिलिटी आती जाती है कि हमें रूह नजर आती है। हम इस बात का एहसास नहीं करते हैं क्योंकि बहुत जरूरी होता है कि हम जिक्र के जरिए से अपने अंदर शांति लाएं। बहुत शांति, बहुत खमियां। जब शांति और खमियां होती है तो हम हमारे अंदर जो माजिजात होते हैं उसको पहचान सकते हैं। ये माजिजा ही है कि आप तमाम वीक डेज के अंदर रात को क्या वक्त है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग वक्त है, इल्म सुनने हाजिर हो गए हैं। क्यों? क्योंकि रूह के अंदर ये आशिकी पैदा हो चुकी है। क्या इस बात का हमें एहसास है? क्या इस बात की खुशी के लिए हमने कभी सजदा किया कि मौला तूने हमें ये आशिकी दी, ये प्यार दिया? ये माजिजे से कम नहीं है। जमात में बहुत सारे लोग हैं। कितने लोग हैं जिनको इल्म से लगाव है?
तो मुबारकबाद के रूह के दोस्त हैं हम, और हमें एक दूसरे को मिलके बात करके खुशी होती है। फिर मौला फरमाते हैं, जब तुम आदमी को देखते हो तो आदमी की शक्ल दिखाई देती है, हाथ, पैर, मुंह, आंखें सब दिखाई देते हैं, लेकिन रूह दिखाई नहीं देता। तुम रूह को देखने की जुस्तजू करो। जुस्तजू, find out, be curious about it, look for it, identify it, recognize it. All these words are interrelated. हम यही बात करें कि जब हम किसी को देखते हैं तो उनकी, हम जिस्म को देखते हैं, हाथ को देखते हैं, आंख को देखते हैं, पैर को देखते हैं कि भाई क्या कपड़े पहने, कैसे चल रहे हैं। एक मोमिन इन चीजों को नहीं देखता। वो उसके अंदर जो नूर है, उसकी मुस्कुराहट में, उसकी आंखों में जो चमक है, वो उसको देखता है, उसके अंदर की रोशनी को देखता है। जिस्म पे कैसे भी कपड़े पड़े हों, कौन केयर करता है? किस तरह की भी चाल हो, कौन केयर करता है? मोमिन नहीं केयर करता। किस किस्म की लैंग्वेज है, क्या गलतियां हो रही है, कौन केयर करता है? नूर कितना है, मोमिन वो देखता है। तो मौला ये फरमाते हैं कि तुम ये दुआ करो, ये चाहो अपने अंदर, जो भी चीज हमें चाहिए ना, उसके लिए हमें दुआ करनी चाहिए। तो मौला फरमाते हैं कि तुम रूह को देखने की जुस्तजू करो। इमाम का ये हुक्म हो गया। हम में से कितने लोग ये दुआ करते कि मौला मुझे रूह देखने की तू तौफीक दे, मुझे रूह को दिखा। ये कितनी इंपॉर्टेंट दुआ है जो हमें करनी चाहिए कि हम अपनी हकीकत को देख पाए। लेकिन ये कहां से देखेंगे, ये समझ कहां से आएगी? इल्म से। कैसे इल्म से? सबसे पहला जो इल्म से हमने पहचाना कि हमारे खुद के अंदर ये बुराइयां हैं, हमारी जात का हिस्सा है। जब हमें इल्म नहीं था तो हमें पता भी नहीं था कि हम गुरूर करते हैं। जब तक हमारे पास इल्म नहीं था, हमें ये मालूम नहीं था, हम लोगों को जज करते हैं दिमाग से, जबान से नहीं, दिमाग से जज करते हैं, गुनाह करते ही चले जाते हैं। जैसे इल्म हासिल हुआ, हमें समझ में आता गया कि ये तमाम बातें जो हमारी जात का हिस्सा है वो सही नहीं है, गलत है। हमारी अपने आप की पहचान जो है वो वहीं से शुरू हो जाती है। और फिर जब हम नफ्स टटोलने लगते हैं, अपनी पल्स को चेक करने लगते हैं, मीनिंग के उन बुराइयों को हटाते जाते हैं, हम अपने आप को और ज्यादा करीब से जानने शुरू कर देते हैं। जितना जो इंसान अपने दिल का आईना साफ करता है, यकीन करें हमारे दिल के अंदर आईना है, अगर इसको हम साफ करते हैं और जब किसी मोमिन के सामने खड़े हो जाते हैं तो उस मोमिन का अक्स हमें अपने दिल में दिखाई देता है। उस मोमिन का अक्स, रिफ्लेक्शन हमें दिल में दिखाई देता है। इस बात पे गौर करने की जरूरत है। अगर आप मुझे देखेंगे या मैं आपको देखूंगी तो हमें जिस्म ही दिखाई देगा, रूह नहीं दिखाई देगी। लेकिन कोई ऐसी फीलिंग है, कोई ऐसी बात है जो हमारे दिलों को छूती है। वो क्या है? वो यही है कि जो मोमिन सालिक अपने आप को सुधारने लगते हैं, इल्म से पाक करने लगते हैं, वो अपने दिल के आईने को साफ करने लगते हैं। और जब मोमिन से मोमिन की मुलाकात होती है तो उसका रिफ्लेक्शन उसको अपने दिल पे महसूस होता है, नजर आता है, सुनाई देता है। जितनी उसकी जिक्र, जितनी उसकी रियाजत, जितना उसकी इबादत, इतना ज्यादा वो देख, सुन, समझ सकता है। और ये बहुत बड़ी रहमत है इमाम की, बहुत बड़ा माजिजा है जो हमारे पास है। मैं नहीं मानती हूं कि हम तमाम जो हैं इल्म के आशिक हों, इबादत भी करते हों, जितनी भी जो भी करते हों, जिक्र भी करते हों, हमारे दिल के अंदर ये ताकत नहीं है कि हम मोमिन को ना पहचान सकें, हम अच्छाई को ना देख सकें। हाँ, ये अलग बात है कि हमारे पास इतना सुकून नहीं है कि हम इसको आइडेंटिफाई कर लें। लेकिन मेरे अंदर ये बहुत स्ट्रॉन्ग ये यकीन है कि हम तमाम के अंदर ये माजिजा मौजूद है। उम्मीद है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इन बातों को सुन के अपने अंदर झांकेंगे और इन माजिजात को पहचानेंगे। जब माजिजात को पहचानेंगे ना, तो खुद के अंदर एक खुशी और शुक्राने की कैफियत आएगी, और यही शुक्राने की कैफियत हमें हिम्मत देगी कि हम और आगे बढ़े। तो यहाँ पे रोकते हैं, इंशाल्लाह हम इसको कंटिन्यू करेंगे। Shukr, shukr, Niamat Ben. Continue. Oh my God, you gave us. I have no words. મોલા તમારી ઉત્તમ સેવા કબૂલ કરે. તમારા દિલમાં આવીને બેસીને અમને આવી રીતે ઇલમ આપે. deep ઇલમ. આમીન. Shukr Mola. I'm so glad it was your question, right, about intellect, and I hope you got the answer.
Yes. શુકર મોલા. મોલાજી રહેમત છે તમારા ઉપર. બસ એવી રીતે અમને ઇનામ આપ્યા કરો અને ઈ રસ્તામાં અમે ચાલીએ. દુઆ કરો. Amen. I'm seeing one question here, very important question. And the friend is asking, why not Ya Hai and Al Hai? So why not Ya Shah Karim Al Akram, and why do we say Shah Karim Al Akram? So it's a very valid question. The word Ya in Arabic means O, in Urdu A. So when we say Ya Ali, O Ali, A Ali, so we are calling Ya Ali. When we do tasbih, Ya Ali, we are calling. But when we say only Ali, Ali is the name, it is the word, it is the Isme Azam. It depends on the moment's intention. That moment is thinking of himself or herself far away from Mawla and calling Ya Ali, Ya Ali, Ya Ali, or Ali, Ali, Ali. Ya Shah Karim Al Akram, Ya Shah Karim Al Akram, Shah Karim Al Akram, Shah Karim Al Akram. It depends on the intention, the way you are doing. The word Ya means to call, oh. When we say Al Hai, Al, the word in Arabic, Al means the way we say for proper noun, the Aga Khan Foundation. So the Hai means to be living. Al Hai, the one who is living. So it's the word Al means the. And it is the characteristic, it is the sifat of someone being alive, living. It's not a name. So I cannot say Ya Hai, Ya Hai. It doesn't make sense. So when you say Ya Ali or Ya Shah Karim Al Akram, it is your intention. You are calling, oh Ali, oh Shah Karim Al Akram. But if it is your intention that Mawla is near you, it is Isme Azam, he is in you, you are saying Shah Karim Al Akram, Shah Karim Al Akram. That's also right. So it's nothing about being wrong or right. It is the intention of the moment, the way they say. There are some people who would say that when we are doing zikr in congregation, don't be using word without Ya. Because when we are in the group, we are calling Ya Ali, and that's why we do zikr, Ya Ali, Mawla Ali. We are calling as a group, Mawla, come and bestow your mercy on this group. We are together, unitedly, we are calling upon you. And that's the right intention, you can do that. But then when a Mu'min Salik is going further in the journey, and if we say we decide to do zikr, Ali, 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 that would be right too. So it all depends on how and what our intentions are. I hope I have answered your question, friend. Any other question? Anybody wants to ask any question? Unmute yourself and ask. If no question, then I'll take your leave, inshallah. I'll see you next week. Yali Madad, Yali Madad. Yali Madad. Yali Madad, Niamat Sama. It was wonderful session. Shukran Mawla, Shukran Alhamdulillah. It's all due to your prayers. You know that. We are gaining a lot every day. Each moment we are gaining a lot. Really, it was very, very, very. Yali Madad. Yali Madad. Yali Madad. दुआ में याद रखना. आमीन सबके लिए दुआ, इस पूरी जमात के लिए दुआ. આમીન. મોલા બધાયની સેવા કબૂલ કરે, નમ્રતા આપે ને સુખી સલામત ના આબાદ રાખે, ઈમાન જિંદગીના છેલ્લા દમ સુધી સલામત રાખે. વધારે સેવા કરવા હિંમત, શક્તિ, પ્રેરણા, તંદુરસ્ત મોકા આપે. અલ્લાહ બેલી શુકર મોલા, શુકર યાદ અલ્લાહ બેલી યાદી.